ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। जय भीम नमो बुद्धाय। सारे तो पहला ਭਿੱਖੂ संघ ਨੂੰ ਵਧਾਈ आए हुए पासकां ਦੇ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਾਸਕ ਸਾਥੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਧੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਵੀ ਲਈ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਤ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਆ ਇਹ ਭਿੱਖੂਗਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਲ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਲ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਲ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ 3 ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਚੌਥਾ ਆਰਿਆ ਸੱਚ
ਉਹ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਮਾਂ ਸੰਕਲਪੋ, ਸਮਾਂ ਵਾਚਾ, ਸਮਾਂ ਕਮੰਤੋ, ਸਮਾਂ ਜੀਵੋ, ਸਮਾਂ ਬਿਆਮੋ, ਸਮਾਂ ਸਤੀ ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਮਿਕ ਸੰਬੁੱਧ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਔਰ ਸੰਮਿਕ ਸੰਬੁੱਧ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲ ਮਿੱਤਰੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਫਸੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੰਗਲ ਮੈਤਰੀ ਜੈ ਭੀਮ ਨਮੋਕਾਰ। बहुत बहुत साधुवाद, साधु साधु साधु। हमारे बीच ਕਾਰਯੋਗ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਦਾ, ਭਿਕਸ਼ੂਣੀ ਸੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਆ, ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਧੂਸੂਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਬੋਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਭੰਤੇ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਕਸੂਦਾਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਿਕਸ਼ੂਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਿਕਸ਼ੂਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਰੰਭਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ये जड़ा काम है नेपरे चढ़े। एक बार नकोदर में बुद्ध विहार है, अशोका बुद्ध विहार में हम वहाँ पर रह रहे हैं और सभी महिलाओं को, पुरुषों को भी, पुरुष भी आ सकते हैं। जो भगवान बुद्ध की बातें हैं, जो बाबा साहब की
बुद्ध की शिक्षा, बाबा साहब की शिक्षा है, उसको गहराई से अध्ययन किया जाएगा, बताया जाएगा आप सभी लोगों को। और आप लोग वहाँ पर 10 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन का खाने का, रहने का सारी व्यवस्था है, वहाँ आप रुक सकते हो। लेकिन प्रशिक्षण 10 दिन 2-4 घंटे का पढ़ाई है, शिक्षा है, उसको आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप लोग उसमें भाग लें। 20 से 30 दिसंबर ठीक है। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक है। ठीक ठीक। अभी आपने भिक्षुणी जी से धम्म देशना के माध्यम से उनके विचार जो भगवान बुद्ध द्वारा पुस्तक में लिखे हुए उन्होंने पढ़कर आपको बताया, और उसमें कितने लोगों के समझ में आया जा नहीं, आप स्वयं जान लो कि ये बुद्ध ने जो मार्ग दिया है अच्छा है हमारे लिए कि गलत। आप जान करके स्वयं हमें बुद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए। इस हिंदू धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है क्षमता या सामर्थ्य न होने से असफल हो जाता है। क्षमता से अधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए नाकाम प्रयास करता है, तब ये उसके पतन का कारण है। तो हमें मार्ग क्या दिया? मध्यम मार्ग दिया। भगवान बुद्ध ने सबको मध्यम मार्ग दिया है, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो, सबको मध्यम मार्ग दिया है। जो मध्यम मार्ग में जिएगा उसको कभी परेशानी नहीं होती है। इस तरह से जो व्यक्ति उपरोक्त सभी पराभवों के कारणों को जान लेता है, तब वो जो है व्यक्ति प्रज्ञाशील होने का। ठीक ठीक, 4-5 लोगों के समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये धम्म कार्य के लिए हम सब लोग आए हुए आपके बीच में आज नरेश जी द्वारा जो आप सबके दर्शन कराए गए, एक दूसरे से 10 वर्ष मुखमंजन हुआ हमारा आपका, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। और हम थोड़ी अपनी 5 मिनट में बात ज़्यादा नहीं रखूँगा, क्योंकि हम बड़ी बात नहीं रखते, हम तो छोटी सी बात रख के अपने भिक्षुओं को सुनते हैं, उसके बाद अपनी बात को समापन कर देंगे। तो मैं सबसे पहले एक नारा लगा दें आप लोग, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। क्या बात है, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सभी लोग बोलिए। इस घर में प्रवेश हो रहा है, गृह प्रवेश भी है ना पहले से। तो अब बाबा साहब तो ऐसे क्या है कि ये आवाज है ना संसार में, ये कभी नहीं मरती है, ये तो नहीं मरती है ना, संसार में गूंजती रहती है। तो ये आवाज इस तरह गूंजना चाहिए, है ना, अच्छी सी। इस घर में हमेशा एक किलकारियाँ होना चाहिए, आवाज गूंजना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को साधुवाद करते हुए, और सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे, जो धैर्यपूर्वक हमारे भिक्षुओं के विचारों को आप सुन रहे हैं। इसके लिए तो ये धम्म है। क्या है? धम्म। धम्म किसे कहते हैं बताए, कोई जानता है क्या? धम्म, धम्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म तो जानते हैं, जानता है कोई धर्म क्या है? बताओ ना, एक व्यक्ति तो कोई बताओ। हम क्या समझा के तुम्हें जाएंगे? पढ़ के सुना के चले गए, समझ में नहीं आया चल दिए। भाई कुछ तो हम समझा के जाएंगे ना आपको। इतनी मध्य प्रदेश जहाँ ये भगवान बाबा सब पैदा हुआ, ने पैदा किया वो है धर्म है। हाँ जिस धर्म से खानदान चले आ रहे हैं वो है धर्म। हाँ, धर्म। अच्छा अच्छा अच्छा। और धम्म नहीं। तो ये मध्य प्रदेश की धरती में बाबा साहब पैदा हुए। कब हुए? 14 अप्रैल 1891 में। कब पैदा हुए? 14 अप्रैल 1991। कब पैदा हुए बहन जी? 1891 में पैदा हुए, है ना। तो अब कितना चल रहा है? 25 चल रहा। कितना समय हो गया? अभी ज्यादा समय नहीं। हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने इनको देखा भी होगा, देखा होगा ना। और ये जब ये शरीर पूरा करके यहाँ से
कब गए? 6 दिसंबर 1956 को। कब गए? अब कई हमारे पूर्वज ऐसे होंगे जो उन्होंने इनका साथ लिया होगा, क्योंकि वो पंजाब की धरती पे आए थे। बिल्कुल बराबर चलेगी। आए थे ना, पंजाब की धरती पे आए थे, तो पंजाब के लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे। सच्चाई है। सामने वो हरिया भैया बाद में करना इसको कि ये तो इनके लिए हम काम करते हैं। जी बनते लोग किसके लिए काम करते हैं? बाबा साहब के। क्योंकि बाबा साहब अगर इस दुनिया में ना आता तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। ये हमारा कौन है? मुक्तिदाता। कौन है? इसने हमको गुलामी से मुक्ति दिलाई। उसके पहले हमारा कोई राजा था क्या? कोई रानियां थी क्या? आज देखो जी हमारी बेटी रानी बन के बैठी है, ये हमारा राजा बन के बैठा है ना? जाके 2-2.5 लाख बेंगलोर में लेता है, ये बेटी भी 2-3-4 लाख लेती है ना। तो बाबा साहब भगवान मेरा था, उसके पहले हमारी बेटियां क्या करती थी? इन्होंने भंते जी ने क्या बताया? गुलामी की बेड़ियों में, बाल विवाह में लिप्त हो जाती थी, कभी भी ऊपर निकल के नहीं आ पाती थी। लिखा है ना रामायण में, क्या लिखा था? ढोर गवार शूद्र पशु नारी और शकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसके अधिकारी है? ताड़ना के अधिकारी थे ना। तो मेरा भगवान 14 अप्रैल 1891 को इस भारत भूमि की, मध्य प्रदेश की, महू नगर की धरती पर पैदा हुआ। उसने बहुत कठिनाई झेली। पढ़ने के लिए उसको कहाँ बिठाया जाता था? क्लास के बाहर, पीछे। आज हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आगे बैठते हैं। ये किसकी देन है? बाबा साहब, है ना? तो हम बिच्छू इन्हीं के लिए काम करते हैं, इन्हीं के दिखाए हुए मार्ग के लिए कार्य करते हैं। कि दुनिया में इनको हमने संसार में सिंबल ऑफ नॉलेज माना। हमने नहीं माना, हमने तो माना ही माना है, लेकिन अमेरिका जैसा संसार के विद्वान बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए ना, है ना? इनको माना। तो मैं कार्य इनके लिए करता हूं। देखो मैं 2 बातें पर नरेश जी, और सुन लीजिए आप, नरेश जी बैठ जाओ बड़े प्यार से। देखो मैं कितनी भावुकता पूर्ण अपनी बात कहता हूं। सुनो बलदेव जी, राजकुमार जी सुन लो, इनके लिए समर्पण है। आह याद आए पुरानी छाती हमारी भवकती, पढ़ कर के वो बीती बिथा सीने पे गोली ठनकती। क्या गुजरी होगी उस हृदय पर जो उस कुसुमय में पले, हमको तो अमृत दान दे स्वयं कांटों में खिले थे ना कांटों में बाबा साहब, हमको अमृत दान दिया है ना जी बाबा साहब ने। तो सम्मानित उपासक उपासिका हो, बाबा साहब ने हमारी दशा और दुर्दशा देखकर हमारे लिए घोषणा की कि मैं सड़ी गली व्यवस्था में अब नहीं रहना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने 1935 में कहा कि मैं इस दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूं, ये मेरे बस में नहीं था जी, मेरे शक्ति में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो 1935 में घोषणा की बाबा साहब ने। सारी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि डॉक्टर अंबेडकर अब तो धर्म बदलेगा, धर्म परिवर्तन करेगा। तो देश के लोगों ने कहा कि अंबेडकर हमारे धर्म में आ जाओ। मौलाना ने कहा, मुसलमानों के मौलाना निजाम ने कहा, एक हवेली हैदराबाद का निजाम था, संसार में बहुत पैसे वाला था। दक्षिण भारत के निजाम का नाम सुना है आप सब लोगों ने? बहुत, उसके सोने के ही घर महल है, सारी चीज सोने की है, इतना सोना था उस पे। उसने कहा अंबेडकर हमारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, आप जो भी चाहेंगे वो हमसे ले सकते हैं।
यहाँ के सिख भाई गुरु, इन लोगों ने बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिख धर्म स्वीकार कर लो, है सिख धर्म में सबसे बड़ी जो पदवी होती है वो आपको हासिल होगी, जितनी धन दौलत की आवश्यकता है होगी वो आपको सब मिलेगा। इसी प्रकार ईसाइयों ने भी कहा, लेकिन नहीं, हमारे भगवान ने 23 सितंबर 1917 को एक प्रतिज्ञा ली थी। कौन सी प्रतिज्ञा थी? साहू महाराज ने जब नौकरी करने के लिए कहा था, तुम्हें मैं वजीफा दूंगा, स्कॉलरशिप दूंगा, तुम विदेश पढ़ के आइए और हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। तो बाबा साहब ने वहां जाकर बड़ौदा रियासत में मात्र कितने दिन नौकरी की थी? 11 दिन। कितने दिन नौकरी की थी? मेरी बहनों बताओ, मेरे सम्मानित साथियों बताओ, मात्र 11 दिन। उनको फाइल इस तरह से फेंक के दी जाती थी। बड़े सेक्रेटरी थे उस रियासत के, चपरासी भी पानी दूर से रख जाता। अब आप देखिए उस महापुरुष के साथ कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना दुराचार हुआ। तो उसने 23 सितंबर 1917 को यह शपथ ली, ये कसम ली कि मैं अगर इन दलितों को, इन अछूतों को, इनके हक अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपने सीने में गोली खाकर मर जाऊंगा। जब 1935 में हमारे भगवान बाबा साहब ने शपथ ली बड़ौदा में, उसके बाद वो अपने काम पर लग गए। 35 में घोषणा कर दी सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ देंगे। फिर उन्होंने पेशेंस रखा 21 वर्ष तक। अगर मैं अभी बुद्ध बन गया 1935 में तो मैं संविधान नहीं बना पाऊंगा, अपने लोगों को हक अधिकार नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा और कहा कि हम तुम्हें अधिकार देने के लिए जो हमने कसम खाई है उसे हम पूरा करेंगे। संविधान बनाया ना, सबको अधिकार लिखा जी। चाहे राजा का बेटा हो, है या किसी गरीब की संतान, है सभी को हक बराबर दिया ना उसने। फिर उसके बाद अक्टूबर में 14 अक्टूबर 56 को उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। अपने यहाँ धर्म नहीं था, ये बुद्ध नहीं थे पहले ऐसे। बलदेव राज जी, पहले इस भारत में ये धम्म यहीं का था, सब कुछ यहीं का था। यहाँ की उत्पत्ति, यहाँ की पैदाइश, ये लुम्बिनी में पैदा हुए, सब कुछ यहीं का था। पर यहाँ से विलुप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने समता की बात की, ममता की बात की, प्रेम की बात की, करुणा की बात की, भाईचारे की बात की। तो ये तथागत बुद्ध ने जब ये बात 2700 साल पहले कही तो यहाँ की व्यवस्था को ये बहुत बुरा लगा कि समता नहीं आ सकती है, ये विषमता में ही तुम्हें रहना पड़ेगा, हमारी गुलामी तुमको करना ही पड़ेगी। तो पहले क्रांतिकारी जो हुए हमारे भगवान बुद्ध हुए। उसके बाद बाबा साहब ने कहा अब तुम बुद्ध की ओर जाओ। तो अभी आपने, मैं ज्यादा समय न ले रहा हूं, अभी आपने हमसे धम्म के लिए, तीसर और पंसील लेने के लिए जो आग्रह हमसे कराया, हमसे किया, हमने आपको तीसर और पंसील दिया। तो उसमें आपने कुछ शपथ ली है, शिक्षाएं ली हैं। क्या शिक्षा ली है? ए बुद्ध, नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सी। मैं भगवान बुद्ध अरहत को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपने इनको नमस्कार किया है, नमन किया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, आप बुद्धि और विवेक की शरण जाएंगे। आपने क्या कहा है? हम बुद्धि और विवेक से काम करेंगे।
धम्मं, धम्म क्या है बताइए, धम्म क्या है? अब आ गया धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म एक हमारे बाबा साहब के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है। निकल जाओ। एक मार्ग है। क्या है? मार्ग। ये मार्ग है और ये व्यवहार है। क्या है? व्यवहार। धम्म क्या है बेटी? अरनेश जी, धम्म ये मार्ग और व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है? तो आप धम्मिक हैं या नहीं है? तभी धम्म सधम्म होता है जब तुम दूसरे से प्रेम करते हो, करुणा करते हो, भाईचारा करते हो, मैत्री रखते हो, तो धम्म है। ये आपके व्यवहार में आना चाहिए। ये हमारा बाबा साहब हमको देके गया है। ठीक है ना? संग सत्य का संग होता है, भिक्खु का संग होता है, ये सत्य का संग है। पता है काय काय का संग है? ये भी समझाऊंगा आपको। बताओ, काम को, वासना को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को ये मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, हार जाते हैं, है ना? फिर ये भंते कहलाते, इसे भग्न कर दिया, सारी चीजें भग्न खत्म कर दी। ठीक है? फिर वो भंते बनते हैं। जिसके मन में तृष्णा रहती है, लोभ रहता है, लालच रहता है, वो भंते तो है, लेकिन उसका वो पूर्णतः हकदार नहीं है। फिर उसके बाद आपने कहा, हमने आपसे दीक्षा शिक्षाएं दी, पालाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। हम कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मतलब कैसे जाओ थोड़ा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। आपने हमसे शिक्षा ली है ना? पता लगे, अब बेटे चला जा, एक पहिया ले आ, मुर्गा कटवा ला, है ना? यहाँ होता है ना ऐसा, चला जा। तो हम जीते जी जीवन में पालाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि, अकारण किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। हम उसका कारण नहीं बनेंगे, हम उसका कारण नहीं बनेंगे। दूसरी शिक्षा आपने ली है, अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। हमसे दीक्षा ली है, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। करोगे क्या चोरी? नहीं। ऐसी मनसा है किसी की? ये भगवान बुद्ध सिखा रहे हैं, हमारा बाबा साहब सिखा रहा है। हम किसी प्राणी की हत्या भी नहीं करेंगे और चोरी भी नहीं करेंगे। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं क्षमा। ये आता है व्यभिचार में। हम अपनी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेंगे, दूसरे की माँ बहन को हम अपनी माँ बहन समझेंगे। कभी किसी के साथ कोई गलत धारणा या गलत व्यवहार, गलत व्यभिचार नहीं करेंगे। चौथा सील है मेरा, मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूं। इस समाज को, भगवान बुद्ध बाबा साहब को साक्षी मानकर ये शिक्षा ग्रहण करता हूं, करती हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? ये हमारे शिक्षा भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने हमको दी। इसका तुम्हें चलना है। पांचवा सील है जो मेरा, जिसे सील कहते हैं, सुरा मेरय मज्ज पमा दठाना वेरमणि शिक्षा पदं क्षमा। शराब, सुरा, शराब, कच्ची पक्की, मज्जा जो हड्डी में निकलता है लोग चूसते खाते ना होटलों में। सुरा मेरय मज्ज पमा दठाना वेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि। हम कभी भी कच्ची पक्की शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। अगर हम सच्चे भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी बनना चाहते, ऐसी शिक्षा हम आपसे ग्रहण करें। ऐसी शिक्षा हम लोगों ने आपसे ली। ठीक, आगे इसको यही खत्म करते हैं। सब पापस्य करणम, क्या? अकरणम कुशलस्य उपसंपदा। सभी जो अकुशल कर्म हैं मैं उनको नहीं करूंगा। जितने भी अकुशल कर्म होते हैं, सचित परियोदपनम एतानुबुद्धान, अच्छे काम,
हमेशा सच्चे काम ही करूँगा, ऐसा हमारे भगवान बुद्ध का शासन। ये नियम और कानून, ये शिक्षा लेकर आज आप लोग जा रहे हो। इसको अंत में कहते हैं ना, साधु 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 कहते हैं ना, कहा है सभी ने। इसका मतलब है इसको संभाल कर और साध कर रखना है अपने हृदय में। कहाँ रखना है? हृदय में साध कर रखना है, संभाल कर रखना है। तो आज जो है ना, भगवान बुद्ध का तीसरा पंचशील आप लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों से लिया है, इसे आप संभाल कर रखें, ऐसी हम सब लोग आपसे कामनाएं करते हैं। और आपने धैर्य पूर्वक धर्म गुरु, इसे धर्म गुरु कहते हैं, बनते लोगों को गुरु भी कहते हैं, कह लो बनते भिक्षु भी कहते हैं, लेकिन धर्म गुरु एक प्रचलन पैदा कर दो, हमारा भी धर्म गुरु होना चाहिए। तो आज आपने धर्म गुरुओं से शिक्षाएं ली, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। अब इसके बाद हम अपना जो है इनके लिए अभी करें अपन कामनाएं, है अभी कामनाएं करें। नहीं अभी वो होना है ना, क्या? अष्टमंगल गाथा होना है। नहीं, अष्टमंगल गाथा तो होना है, अष्टमंगल गाथा तो होना है। करें, स्वीकार करें, साथ साथ साथ। बुद्ध हमारे उद्धारक बाबा साहब को सहस्रादि प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी गुरु महाराज जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे भिक्षु संघ को नमन करते हुए आज जो मेरे सामने बड़े प्रतिष्ठावान लोग बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही हमारे कार्यक्रम के आयोजक एवं हमारी पुत्र और पुत्रियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी भिक्षुनी जी बैठी हैं, हम चाहते कि उनसे ज़्यादा सुनें, तो अपनी बातों की शुरुआत में मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो राजपाट छोड़ा था, जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, वो हिंदू कोड बिल, यानी कि हिंदू कोड बिल का सीधा अर्थ है कि आज जो आप जहाँ खड़े हैं उतनी इज्जत देने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को लागू करवाया। लागू न होने के कारण उन्होंने इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बाद उन्होंने राजकाज को लात मार दी और आंदोलन करने लगे। उस आंदोलन का कारण है कि आज मेरी बहनें, बेटियाँ, मेरी माताएं आज जो इस स्थिति में बैठी हैं वो उन्हीं की देन है। हवा जब चलती है तो तूफान बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो ब्रह्मांड बदल देती है, ब्रह्मांड बदल देती है, ब्रह्मांड बदल देती है। ये शक्ति बाबा साहब ने आपको दी है। बाबा हमारे बुद्ध धर्म में सभी की ड्यूटियां बताई गई हैं। भिक्षुओं की क्या ड्यूटी है, उपासकों की क्या ड्यूटी है, साथ ही साथ जो आज प्रसंग है, हमारी बच्ची जो आज दूसरे घर में जा रही है, उसके लिए भी बाबा साहब, उसके लिए भी हमारे बुद्ध धर्म में कुछ ड्यूटियां बताई गई हैं, कुछ उनके कर्तव्य बताए गए हैं। वो विशाखा का प्रसंग है। तो प्रसंग का आधार ये है कि वो विशाखा जब अपनी ससुराल जाती है, और ससुराल जाते समय जब हमारे बुद्ध धर्म की शिक्षाएं जो उसको दी जाती हैं, बहुत शिक्षाएं मैं आपके सामने आज के प्रसंग में देना चाहता हूँ। पहले कि घर की आग बाहर मत जाने देना। हमारे बुद्धाचार्य जी समझ रहे इस बात को, वो प्रसंग तक पहुँच गए। उनको भी समझाओ। तो घर की आग बाहर ना जाने का मतलब ये है कि घर में जो अशांति वाली बातें होती हैं, घर के जो छुटपुट झगड़ाएँ होती हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो अपने घर की दहलीज के बाहर ना जाएं। तो पहला नंबर जो हमारे कि घर की आग बाहर नहीं जाना है। दूसरी बात, बाहर की आग घर में नहीं लाना है। यदि तुम्हें ये पता है या माय के पक्ष से या तुम्हारे रिश्तेदारों से कि कोई बात ऐसी पैदा हुई है जिससे लोगों को अशांति हुई, जो असामाजिक है या जैसे भी है, थोड़ी जैसे मान लो झगड़ा हुआ है या कुछ भी है, इस तरह की जो छोटी छोटी आग है, इसको भगवान ने आग बोला है। तो इस आग को बाहर से अंदर नहीं आने देना है। दूसरी बात,
जो देता है उसको देना है, जो दे करके वापस कर दे उसको देना है। माने जो देता है, मेरे और आपके अच्छे संबंध हैं, आपसे मैं आप मुझे देते हैं, मैं आपको देते हैं, तो वो हमारी बच्ची को कहा गया है कि तुम जो है, जो तुमको देता है तुम उसको देना, जो नहीं देता है उसको नहीं देना। जिससे तुम्हारे संबंध नहीं है या तुमको लगता है कि हमारे ससुराल के पक्ष के लोग जो है इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो हमको नहीं लेना है। दूसरा, सुख से बैठना है। सुख का मतलब ये है कि जब तुम्हारे परिवार, सुख का मतलब ये है कि तुम्हारे सुख में कोई खलल पैदा ना करे। सुख का मतलब ये है कि तुम जहाँ बैठ गए तो सब लोग खुश हो जाएं कि हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे तुम्हारे सास ससुर, जो तुम्हारे ससुराल वाला पक्ष है, जब अच्छी तरह से सब पूरी तरह से अपने काम कर ले, यानी कि तुम्हें जब बैठो, जब उनके पूरे काम हो जाएं और उसके बाद तुम बैठो, तो तुम वो उन्होंने कहा है कि सुख से बैठो। बोला सुख से सो, ये भी भगवान ने कहा है कि सुख से सो। सुख से सोने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे सारे काम जो घर के फिनिश हो जाएं, जब तुम्हारे सारे काम फिनिश हो जाएं, वो काम खत्म करने के बाद में तुम सुख से सो। जो देता है, जो नहीं देता है उसको भी देना है। मतलब ऐसे लोगों के साथ भी हमें संबंध रखना है जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनको तुम्हें देना है और फिर वापस उनसे नहीं लेना है। तो ये जो ड्यूटियां बताई गई थी, जब हमारी बच्ची जो है दूसरे घर में जाती है तो ये ड्यूटियां कुछ बताई गई थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारी भिखुनी जी से आग्रह करता हूं कि वो इस संबंध में कुछ ज़्यादा बताएं, क्योंकि आपका वर्ग ज़्यादा है यहाँ, हम लोगों का वर्ग कम है। आपने फैसला